Communication is the key to human connection, and it is really very important for all our personal and career growth. Hi guys, my name is Anchal, and if you are new to my channel, I create videos on motivational, educational and informative topics. और आज का वीडियो मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव दोनों होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस एंड लर्निंग इन दिस वीडियो. So before starting this video, I'll request please do subscribe to my channel. Let me explain communication skill for you. So communication is to express your feelings and needs to other person. And when other person get your meaning easily and convincingly, then it's your skill. Expressing your feelings is that important that it has been given place in our fundamental rights. It is one of our fundamental rights to freedom of expression. और अगर ये कम्युनिकेशन ना हो तो कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट दिस? अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा देन देयर विल बी नो फोन्स, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो चैटिंग, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली एंड नो करियर एट ऑल. So being a part of the society, you need to communicate with every single person you meet. Tell me, how good is your communication skills? Have you ever been asked this question for any interview, competitions or any team building activity? तो इन सभी जगहों पर communication skills की requirement सबसे पहले आती हैं and you have been asked कि क्या आप communication skills में अच्छे हैं? Then you start searching for it, some good tips to apply and to better in communication skills, how to build your communication skills. But आई वॉन्ट टू आस्क यू कि क्या जब ये आपने फेस किया तभी से आपको इसकी रिक्वायरमेंट फील हुई, आपकी लाइफ में ये रिक्वायरमेंट तभी से जनरेट हुई? नो, माई आंसर इज नो एंड आई विल कन्विंस यू फ्रॉम माई नेक्स्ट एग्जाम्पल. हैव यू सीन अ न्यू बॉर्न बेबी, अ 1 day old baby express by crying? अ बेबी डोंट नो एनी लैंग्वेज बट वो हंस कर और रो कर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. So, my point is, we all have communication skill from childhood. So, isn't it interesting and a relieving thing to know कि हम सबके पास already communication skills है. It is not something new or something जो हमें आज से सीखने की ज़रूरत है. We all have it in ourselves. We have developed it from our childhood. And I want to say especially to those people जो लोग सोचते हैं कि उनका communication skills इतना strong नहीं है, वो अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे कहीं बाहर जाएंगे तो, या फिर public places पर इतने अच्छे से express नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे और इस वजह से वो कई ऐसी opportunities को छोड़ देते हैं सिर्फ इस डर की वजह से या फिर उनके communication skills अच्छे नहीं हैं. So please ऐसा मत सोचिए बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट इन यू. सिर्फ ज़रूरत है उसे अच्छे से पॉलिश करने की एज पर द नीड, बिकॉज अब हमारी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड आइडेंटिटी है जिसे हमें अच्छा रिप्रेजेंट करना है. सो वी नीड इट इन अ प्रोफेशनल एंड पॉलिश्ड वे. प्लीज़ डोंट रिलेट ओनली इंग्लिश विद कम्युनिकेशन स्किल्स. सिर्फ इंग्लिश का होना कम्युनिकेशन स्किल्स का होना नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश आई नो आज सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस पर है, बट स्टिल अगर आप अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं अपनी ओन लैंग्वेज में देन इट इज़ इक्वली गुड एंड रिस्पेक्टेबल. सो यू नीड टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉट योर लैंग्वेज. एंड इफ़ यू वॉन्ट इंग्लिश टू बी योर लैंग्वेज, अगर आपको काम आती है इंग्लिश या जहाँ पर भी आप हैं और आपको अगर इंग्लिश का यूजेज है तो डेफिनेटली अगर आज आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ऐसा तो नहीं है ना कि इट कैंट बी फॉर योर लाइफ. आप उसको वर्क करके बेटर कर सकते हैं बहुत ही जल्दी. 1 से 2 महीने के अंदर आप उस पर अगर वर्क करेंगे यू विल सी द रिजल्ट्स एंड you can be good at your communication skills as well as your language skill. So keep going, don't hesitate, don't stop yourself. When we are in school, as a student, हमको communication skills चाहिए होता है to adjust in our new class, to build friends, to seek help in homework and also to express to our teachers. And then when we grow up, and same thing continues in college or institute, और उसमें हम और बड़े हो चुके होते हैं, and as an adult we need this skill to be polished.
Professionally, we need to build our strong relationships with people, maybe in job or in business, both the cases. Communication skill is really important at every platform of our life. So we need to express differently to different people at different places, but we need to express the right way. Please don't hesitate and start learning it and polishing it from today. एंड वी आर टुगेदर इन इट. अगर आपको कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम आए, यू कैन ऑलवेज सेंड मी इन कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू इट डेफिनेटली. Now I'm going to share with you my special tricks and tips which are really very easy and handy, और आप इसको अप्लाई करके अपना कम्युनिकेशन स्किल किसी भी लैंग्वेज में अच्छा कर सकते हैं. एंड इससे सिर्फ यही नहीं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, दिस विल हेल्प यू इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज वेल. सो इन टिप्स के साथ आपका कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी दोनों इन्हांस होगा एंड यू विल बी ऑन फेवरेट लिस्ट ऑफ एवरी पर्सन अराउंड यू. सो माई फर्स्ट टिप इज़ टॉक इन अ पोलाइट मैनर विद अ मीडियम वॉल्यूम. कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं या बहुत ज़्यादा धीरे बोलते हैं. दोनों ही केसेस में अच्छा अपील नहीं होता, क्योंकि सुनने में अगर धीरे बोलेंगे सामने वाले को कंफर्टेबली सुनाई नहीं दे रहा होगा, वो एक दो बार पूछेगा, उसके बाद सामने वाला पर्सन भी आपकी बात पे ध्यान नहीं देगा, बिकॉज इतनी बार पूछना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है. और आपकी टोन इतनी लो होने की वजह से आपकी बात सही मीनिंग सामने वाले तक पहुंच ही नहीं पाएगा. सिमिलरली टोन पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है. इट्स नॉट दैट कि आपका मूड अगर कभी अच्छा नहीं था दिन में, इट्स नॉट दैट कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं है या आपकी आवाज़ तेज़ है, इस टाइप के कोई भी एक्सक्यूज़ेस प्लीज़ अपने आप को या फिर सामने वाले को कभी ना दें. इट डजंट अपीयर नाइस. योर टोन शुड बी पोलाइट. बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो एंड ढीली ढाली भी नहीं. यू जस्ट नीड टू मेंटेन पोलाइटनेस एंड गुड वॉल्यूम ऑफ योर स्पीच. दैट इज़ इट. आप स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों में इट विल बी योर नॉर्मल रूटीन, आपकी हैबिट हो जाएगी. माई सेकेंड टिप इज़ दिस इज़ माई सेकेंड टिप. मेंटेन अ गुड आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग. अगर मैं इस तरीके से बात करूँ तो आई डोंट थिंक कि सामने कोई भी सुनेंगे उसको. सो मेंटेन अ गुड आई कॉन्टैक्ट. कॉन्टीन्यूअस आप किसी को देख नहीं सकते, वो स्टेयर हो जाएगा एंड इट विल ऑल्सो नॉट गुड. तो किसी को कॉन्टीन्यूअस मत देखिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप जिससे बात कर रहे हैं उनकी तरफ देखें ही ना. सो बीच बीच में इधर उधर अगर आप देखते हैं या फिर इट्स अ नेचुरल थिंग, बट मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट, पोलाइटनेस अगेन फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. आपकी जब तक उनसे बात हो रही है तब तक मोस्टली जो टाइम है आप उनकी तरफ देखकर उनसे बात करें. मेंटेन अ गुड बॉडी पोस्चर, यानी कि आप कंफर्टेबल बैठे या खड़े हों, जिससे भी आप बात कर रहे हो उनके सामने आप कंफर्टेबल हों. कंफर्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप लेट रहे हैं, इधर उधर गिर पड़ रहे हैं. इतना कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, आपकी बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट स्टिल होनी चाहिए. स्टिल मतलब ये नहीं कि स्टैच्यू होना है. सो इट इज़ नॉट अ स्टैच्यू काइंड ऑफ थिंग. इट इज़ कि आप भी कंफर्टेबल हों और ज़्यादा हिलडुल ना रहे हों और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी ना हो. यू नीड टू मेंटेन सम कैजुअल एंड सम प्रोफेशनल थिंग इन दिस. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी साथ में एक्टिविटी ना करें. अपना फ़ोन चेक करना, जो कि आजकल सब गलती करते हैं. जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं और अगर कैजुअल टॉक है किसी फ्रेंड वगैरह से, अगर आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है या फिर कोई कॉल आता है, ठीक है, आप उसको करके एक बार एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, बट it will not look good. और स्पेशली प्रोफेशनल वे में इट्स रियली रिडिकुलस टू थिंक कि अगर आपके साथ कोई प्रोफेशनली कहीं पे ऐसे आप बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और साथ में आपका फ़ोन बार बार रिंग हो रहा है या वाइब्रेट हो रहा है, जस्ट पुट इट ऑन साइलेंट. एंड साइलेंट मीन्स प्रॉपर साइलेंट. वाइब्रेट होना भी इट्स नॉट अ गुड गेस्चर. सो साइलेंट योर फ़ोन, स्पेशली अगर आप किसी भी प्रोफेशनल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर ऑफिस में किसी से बात कर रहे हैं. डोंट लुक एट योर फोन, डोंट चेक योर फोन इन द मिडल ऑफ कन्वर्जेशंस. किसी से भी अगर आप बात कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को चेक ना करें. एंड प्लस डोंट डू एनी काइंड ऑफ नॉइस. कई लोगों की आदत होती है कि वो पेन या पेंसिल हाथ में लेकर दे कीप ऑन हिटिंग इट टू सम सरफेस. डोंट डू दैट. दिस विल शो दैट यू आर रेस्टलेस
और या फिर आपको उनके साथ कन्वर्जेशन में इंटरेस्ट नहीं है। सो आई एम श्योर कि आप किसी को ऐसा फील तो नहीं करवाना चाहते हैं। डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच आर वेरी कॉमनली डन मिस्टेक। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सप्रेस इन योर ओन लैंग्वेज। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को इसी बात से स्ट्रेस होता है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट नो इंग्लिश, या फिर स्पेसिफिक समथिंग, कोई भी अंदर फोबिया होता है कि बात नहीं कर पाएंगे, ऐसे हेजिटेट होकर ही रह जाते हैं। सो डोंट डू दिस, गिव योर सेल्फ अ चांस। अपने आप को एक चांस दे के देखो, बात करने की कोशिश करेंगे। जब आप स्टार्ट करते हो ना, अपने आप वो फ्लो आ जाता है एंड यू कीप ऑन टॉकिंग लाइक। बस ये ज़रूरी है कि जिससे भी आप बात कर रहे हो वो लैंग्वेज उन्हें समझ आनी चाहिए, एंड दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। सामने वाले को आपकी लैंग्वेज समझ आ रही है, इट हार्डली मैटर्स योर इन विच लैंग्वेज यू स्पीक। Just to express it the right way is the key, and you need the communication for it to make the connection, right? Last but not the least, guys, I will say communication work for those who work at it. So please communication पे अपने काम करें, इसको polish करें। You have the skill, just need to polish it. और कभी भी ऐसा मत सोचो that you are at home or maybe your close friend, your childhood friends, and they need to be taken like very casually. No, it's not. The drill is you need to communicate with everybody around you in a positive and respectable manner. तो आपके आसपास कोई भी हो, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, बड़े हों छोटे हों, आपके बराबर की एज के हों, स्पीक टू देम इन द रिक्वायर्ड एंड एक्सपेक्टेड मैनर। क्योंकि हर किसी को प्यार और रिस्पेक्ट दोनों चाहिए होता है, एंड यू नीड टू गिव इट। अगर आप वो दोगे देन यू विल बी हाईली रिस्पेक्टेड, and you will be definitely on the favorite list of all the people around you, and I think you want that only. So be a good human, be a good person, and you will be automatically good at your communication skills. See you in the next video. I hope आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा. Please do share it with your friend circle or in your family, on your WhatsApp groups, or maybe on your FB, and you can also tag me with the name of Aanchal Akash Khare. You can also read my blogs on my website, that is aanchalakashkhare.com. See you in the next video soon. Till then, keep talking, keep expressing yourself. Don't hesitate. Have a nice day. Bye-bye.